Hello friends, let's start a new chapter that is skewness. पूरा नाम जो है वो चैप्टर का skewness of frequency distribution. As you know friends, there are two types of frequency distribution. One is a symmetric, second is a non-symmetric. सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उनके पहले वाली और पीछे वाली, मतलब प्रीवियस एंड नेक्स्ट आर इन इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड. सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप ग्राफ बनाओ तो ये बेल शेप बनता है. ओके, so graph is always bell shaped. जो मॉड्यूलस फ्रीक्वेंसी होती है, that is highest, it is always in middle. Such type of distribution is called symmetrical frequency distribution. Let's check the characteristics. क्या होता है? देखो इसमें its curve is always bell shaped. Value of the mean, median and mode are equal. It means in a symmetrical frequency distribution, x bar is equal to m is equal to mode. मतलब mean, mode, median are always equal. If you draw a graph, तो median is always in median, median is always in middle. See, it is like this. X bar m z. Okay, तो यहां पे होता है Q1 और here is Q3. So we can say that Q3 minus m and m minus Q1, मतलब this and this distance is equal. Median from Q1 and Q3 from median, they are in equidistance. So we can say Q3 minus m, मतलब this distance and this distance is equal. That is in symmetrical frequency distribution. Okay, and the mode of frequency distribution, that is a modulus frequency, is always in middle. These are the characteristics of symmetrical frequency distribution. Second, non-symmetric. उसे लोग कहते हैं skewness. What is skewness, dear friend? Now it's very easy to understand. Skewness क्या है? The lack of symmetry is called skewness. मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है, that is skewness. Skewed frequency distribution. क्या है characteristics of skewness? ये जो symmetrical का frequency distribution, the characteristics of symmetrical frequency distribution जो है, सब उल्टा करो, then it is characteristics of skewness. So characteristics of skewness का वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम. चलो देखते, यही सेम है, उल्टा करो. चलो हम बोल सकते हैं द कर्व ऑफ स्क्यूनेस इज नॉट बेल शेप. नॉट बेल शेप मतलब ये हुआ कि अगर आप कर्व बनाओगे तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड ये कर्व प्रॉपर नहीं होगा, मतलब बेल शेप नहीं होगा. x bar is not equal to m is not equal to, मतलब अगर x bar m और मोड अगर आप फाइंड करो तो ये इक्वल नहीं होगा. ये जो डिस्टेंस है Q3 minus m and m minus Q1 is not equidistant, it is not equal, and modulus frequency is not in the middle. So skewness मतलब what? The lack of symmetry. Lack of symmetry. ये two types of skewness होती है, that is one is a positive, second is a negative. Two types of skewness, that is positive and negative.
फिर से बता दो फ्रेंड, जो स्क्यूनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस, मतलब हाउ टू नो वेदर देर इज अ सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, दैट इज अ skewed. So with the help of this characteristics, we come to know whether the frequency distribution is symmetric or not. If it is asked x bar is equal to m is equal to z, then which type of frequency distribution? We can say it is symmetric. और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, if x bar is equal to 50, median is equal to 50, mode is equal to 50, then which type of frequency distribution? Then we can say it is symmetrical. Okay friends, so once again, characteristics of skewness मतलब टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, फटाफट देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग रिवाइज करो. लैक ऑफ सिमेट्री, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है वो स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. मतलब स्क्यूनेस में क्या होता है, स्क्यूनेस में क्या होता है, द लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस. ये जो सिमेट्रिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब उल्टा. मतलब वी कैन से स्क्यूनेस में क्या होता है, कर्व इज नॉट बेल शेप, वैल्यू ऑफ एक्स बार इज नॉट इक्वल टू एम इज नॉट इक्वल टू जेड, q3 minus m is not equal to m minus q1, and the modulus, that is highest frequency, is not in the middle. So friends, clear? This is the introduction of the chapter. Okay friends, write down. Chalo friends, after the introduction of this topic, let's continue the chapter. The next topic is types of measure of skewness. Types of measure. There are two types of measurement. One is absolute measure. जैसे आपने डिस्पर्जन में भी ये पॉइंट नोट किया होगा, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. एब्सोल्यूट में कोई कंपैरिजन नहीं होती है, एज इट इज यूनिट होता है. रिलेटिव में कंपैरिजन होती है. ओके, तो क्या होता है एब्सोल्यूट मेजर? A measure of skewness which is expressed in the same unit as it is. जैसे kg है तो kg, मार्क्स है तो मार्क्स, जो भी है as it is हमें रखना है. Same unit of the observation of the data is called an absolute measure of skewness. It is called skewness, उसे हम skewness कहते हैं, and it is denoted by SK. SK. It is not useful for comparison of the skewness of two or more frequency distribution. अगर दो से ज्यादा है तो ये कंपैरिजन में प्रॉब्लम होती है. वैसे अगर हम नेक्स्ट सम करेंगे, मेथड्स करेंगे, देन विल डिस्कस इन डिटेल्स. ओके, अभी ये सिंपल मीनिंग है, फिर से बता दूं. एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है? ए मेजर ऑफ स्क्यूनेस विच इज एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट. जो भी यूनिट है वही के वही हम रखते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट. यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होती है. लेकिन इन रिलेटिव में क्या होता है? इट इज कंपैरिजन एंड इट इज फ्री फ्रॉम द यूनिट. इसमें कोई यूनिट, जैसे यहाँ पे हम यूनिट लिखते हैं, यहाँ कोई यूनिट लिखना नहीं होता है. ओके, तो क्या है मीनिंग? रिलेटिव में क्या होता है? मेजर ऑफ स्क्यूनेस विच इज फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस. इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड इट इज डिनोटेड बाय जे. इसमें ना दो ग्रुप की कंपैरिजन हो सकती है. मान लो जिसका जे ज्यादा आता है, इट इज मोर स्क्यूड. जिसका जे कम आता है, लेस, दैट इज अ लेस स्क्यूड. जो मोर स्क्यूड है वो सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, दूर है. सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से दूर है. तो हम सम करेंगे तब ये डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे. दिस इज द सिंपल मीनिंग. प्लीज राइट डाउन.
चलो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फॉर्मूला, दैट इज मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग स्क्यूनेस। सी देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड है, सिर्फ दो ही मेथड है ये चैप्टर में, बहुत ही आसान चैप्टर, वेरी सिंपल, द मोस्ट इजी चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कुछ नहीं है, अगर आपको थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, दोनों अच्छी तरह से आते हैं, देन वेरी इजी चैप्टर, एक दिन में खत्म हो जाएगा। देखो, फर्स्ट मेथड इज अ कार्ल पियर्सन्स मेथड। कार्ल पियर्सन जो एक बहुत ही बड़े स्टैटिस्टिक्स का मास्टर थे, उन्होंने ये छोटी सी फॉर्मूला दी स्क्यूनेस के लिए। फर्स्ट इज अ स्क्यूनेस, दैट इज एब्सोल्यूट मेजर, सेकंड इज अ रिलेटिव मेजर, उसे हम कहते हैं जे। सो दो चीज याद रखनी है। उन्होंने बोला है कि एक्स बार मीन और मोड का जो डिफरेंस है, मीन और मोड का जो डिफरेंस है, दैट इज अ स्क्यूनेस, मतलब डिफरेंस ऑफ टू एवरेजेस। वेरी सिंपल, एक्स बार और मोड दोनों का डिफरेंस अगर निकालो तो मिल जाएगा स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में क्या होता है आपको पता है, एक्स बार इज नॉट इक्वल टू एम इज नॉट इक्वल टू मॉड, तो ये दो एवरेजेस का डिफरेंस निकालो, स्क्यूनेस। रिलेटिव मेजर क्या है, कंपैरिजन वाला मेजर क्या है? रिलेटिव मेजर की सिंपल सी फॉर्मूला है एक्स बार माइनस मोड, ये तो है ही है, दैट इज एस के अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो तो मिल जाएगा जे, वेरी सिंपल। ओके, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ सेकेंड इज अ बाउलीस मेथड, प्रोफेसर बाउली ने क्या बोला, उन्होंने क्वार्टाइल्स का स्टडी किया था, क्वार्टाइल्स का। आपको पता है कि अगर सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो Q3 माइनस एम और M माइनस Q1, ये दोनों का डिस्टेंस है वो इक्वल आता है, इक्वल, मतलब उनकी कोई स्क्यूनेस नहीं होती अगर सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो। अगर सिमेट्रिकल नहीं है देन इट इज कॉल्ड स्क्यूनेस, स्क्यूनेस इज, बताओ, कम ऑन, एब्सोल्यूट मेजर, वेरी गुड। तो स्क्यूनेस सिंपल सी फॉर्मूला, जो सिमेट्रिकल नहीं है उसमें Q1, Q3, Q2 इनका स्टडी किया था प्रोफेसर बाउली ने, उन्होंने सिंपल सी फॉर्मूला दी Q3 माइनस एम, ये जो डिस्टेंस है ये, इसमें से ये डिस्टेंस माइनस करो, ओके, सो दिस इज स्क्यूनेस। अगर ये ब्रैकेट को अगर आप ओपन करोगे तो आपको एक नई फॉर्मूला मिलने वाली है। देखो ये मैं ओपन करता हूं ब्रैकेट, Q3 माइनस एम माइनस Q1 माइनस प्लस, ओके फ्रेंड्स, Q3 माइनस एम माइनस Q1 दैट इज प्लस। तो ये अब अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं रेगुलर स्टडी में। आई रिपीट, सी दिस इज ओरिजिनल फॉर्मूला, आप ये भी कर सकते हो लेकिन ये मोस्ट पॉपुलर है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ओके, अगर इफ यू फाइंड रिलेटिव मेजर, ये यूनिट में शो करना है, ये यूनिट में शो नहीं करना है, दिस इज एडवाइजेबल फॉर कंपैरिजन, इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। चलो, सो दिस इज द रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। रिलेटिव मेजर की फॉर्मूला सिंपल सी है, यहां पे जो माइनस है, ओके, और यहां पे प्लस, वेरी सिंपल, Q3 माइनस एम माइनस Q1, जो ये है ना, ये वो एस के न्यूमरेटर है, वो एस के, और अगर आप यहां पे Q3 माइनस एम प्लस ये दोनों डिस्टेंस को प्लस करो तो आपका बन जाता है एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर में क्या होता है, कंपैरिजन। ओके, ये जो आप इट इज यू नो फ्रेंड्स, इट इज नॉट मेंशन इन यूनिट, तो ये आपका हो गया जे को बोला जाता है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर की सिंपल सी फॉर्मूला, अगर आप ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होता है फ्रेंड्स, देखो, तो ये होगा
Q3 माइनस m माइनस माइनस प्लस Q1, ये ब्रैकेट ओपन करो, Q3 माइनस m प्लस इंटू m दैट इज प्लस m प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, सो Q3 प्लस Q1 minus 2m upon mm cancel, Q3 minus Q1. This is the formula of J. I repeat dear friend, ये J है ना, उनकी फॉर्मूला जो ये वाली है ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो फॉर्मूला हमें मिली, दिस इज मोस्ट पॉपुलर. यू कैन यूज दिस एंड दिस, दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन दिस इज वेरी सिंपल. फिर से बता दो, एस के की फॉर्मूला Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ये एडवाइजेबल है. वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, मैंने ब्रैकेट ओपन किया. तो एक बार फिर से देखो, सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कम ऑन फास्टर, बेल शेप, x बार इज इक्वल टू m इज इक्वल टू मॉड Q3 माइनस m एंड m माइनस Q1, जो दोनों का डिस्टेंस है वो इक्वल होता है. मॉड्यूलस फ्रीक्वेंसी इट इज ऑलवेज इन द मिडल. ये सब जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है. अगर ये सब नहीं है तो बन जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्यूनेस, दैट इज अ लैक ऑफ सिमेट्री, इज कॉल्ड स्क्यूनेस. स्क्यूनेस में दो मेजर है, वन इज एब्सोल्यूट, सेकेंड इज अ रिलेटिव. तो एब्सोल्यूट मेजर जो होता है इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, वो यूनिट में मेंशन किया जाता है. रिलेटिव है वो यूनिट में मेंशन किया नहीं जाता है. चलो मेथड्स देखते हैं. देयर आर ओनली टू मेथड्स, वेरी सिंपल चैप्टर. कार्ल पियर्सन्स मेथड, एक्स बार माइनस मोड करो तो स्क्यूनेस, एक्स बार माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन करो तो जे, दैट इज अ रिलेटिव मेजर. सेकेंड इज अ बाउलिस मेथड. बाउली ने जो स्टडी किया था वो क्वार्टाइल्स पे किया था. आपको पता है m इज इक्वल टू Q2, m इज इक्वल टू Q2 थर्ड चैप्टर में स्टडी किया था. तो Q1 Q2 Q3 की तो गेम है. तो बाउली भैया ने क्या बोला था, Q3 माइनस m ये जो है और m माइनस Q1, इसमें से ये माइनस करो तो आपको मिल जाएगा s के. अगर ब्रैकेट ओपन करो तो फॉर्मूला बनती है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, वेरी सिंपल. और J दैट इज अ रिलेटिव मेजर. रिलेटिव मेजर में क्या करना है, सिर्फ अपॉन प्लस करना है. ये जो चीज़ है माइनस, सेम थिंग यू टू राइट, ये माइनस है वो प्लस करो, दैट्स इट. अगर ब्रैकेट ओपन करो तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगी Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1. तो ये आंसर आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, डोंट वरी. ओके, तो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इसमें मैक्सिमम बस यही चीज तो पूछी जाती है, कुछ नहीं है. इफ यू नो एक्स बार, इफ यू नो मोड, इफ यू नो स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ यू नो Q1, इफ यू नो m, इफ यू नो Q3, चैप्टर खत्म है ना फ्रेंड्स, इजी. ओके, चलो राइट डाउन.